Good morning, student. Today we shall read The Sound of Music, the second lesson from Beehives for 9th class. In this lesson, it has two parts. First part is about Evelyn Glennie and second part is about Bismillah Khan. So today we shall read about Evelyn Glennie. Evelyn Glennie, she couldn't hear very well, still she played music skillfully. With a great skill, she could play more than 1000 musical instruments with perfection. So let us read out how does she make it possible in spite of being a deaf girl, and it got a remarkable success in her life in the field of music. So let us read it out. Evelyn Glennie listened to the sound without hearing it. बिना सुने एवलिन ग्लेनी साउंड को बिना हियर किए हुए उसको कैसे प्ले करती थी. God may have taken her hearing but has given her back something extraordinary. What we hear, she feel. For more deeply any of us. That is why she expresses music so beautifully. भगवान ने God has taken her hearing. भगवान ने उसकी जो श्रवण शक्ति ले ली, but he has given her back. लेकिन बदले में उसको एक ऐसी चीज दे दी, extraordinary, असाधारण, uncommon. What we hear she feel. जो हम सुनते हैं वो उसको feel करते थे. For more deeply than any of us. हम जितना डीपली फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे भी ज़्यादा गहराई से वो ज़्यादा उसको सुनते थे. और दैट इज़ वाई, और इसीलिए से एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसलिए वो म्यूजिक को बड़ी सुंदर तरीके से परफेक्शन के साथ इजीली उसको प्ले कर देते थे. Rush hour crowd jostle for the position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of approaching train. भीड़ भाड़ वाला प्लेटफॉर्म का यहाँ दृश्य डिपिक्ट किया गया है और एक पतली सी लड़की जो अपनी उम्र जो कि 17 साल की थी, 17 years old she was, but looking younger than her age. एक्साइटेड थी, नर्वस थी, घबराई हुई थी, एक्साइटेड थी, बड़ी उत्तेजना थी उसमें, और वो आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशन को फील कर रही थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर्स फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश होम. पहली परफॉर्मेंस उसके होनी थी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में, और इसलिए वो थोड़ी सी डाउटिंग यानी कि शी वाज लिटिल कंफ्यूज्ड. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वाज प्रोफाउंडली डीफ. लेकिन इस जो यंगर जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, जो म्यूजिशियन बनना चाहते, शी वांटेड टू बिकम ए म्यूजिशियन, उसके लिए एक बिगर चैलेंज था देन एनी ऑफ अस बिकॉज she was profoundly deaf. क्योंकि वो completely deaf थी, she was unable to hear. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. उसका जो श्रवण शक्ति जो लूज कर रही थी वो gradual slowly था, process slowly था. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. एक बार जब उसके स्कूल में उसका नाम बुलाया गया तो उसकी मदर ने नोटिस किया कि कुछ गलत है. Evelyn was waiting to play. she was waiting for her turn. वो अपनी टर्न का वेट कर रही थी और उसका जब नाम लिया गया तो she didn't move at all. तो वो अपनी जगह से नहीं हिली. अब उसकी मदर कहते I suddenly realized that she hadn't heard. उसने ये सुना नहीं.
एजाबल ग्लैनी उसकी मदर का नाम है, एवलिन ग्लैनी का। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। और कुछ समय के लिए उसने इस चीज को छिपाया कि वो शी वॉज अनेबल टू हियर। But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress asked her parents to take her to a specialist. जब वो 11 years old हुई तो उसकी जो मार्क्स थी, एकेडमिक रिकॉर्ड उसका नीचे चला गया, नीचे धीरे धीरे गया। और उसके हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया कि उसको एक स्पेशलिस्ट को दिखाए, डॉक्टर को दिखाए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. gradual धीरे धीरे nerve damage का जो रिजल्ट ये हुआ कि उसकी जो hearing पावर थी वो बिल्कुल completely लूज हो गई, खत्म हो गई। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to the school for the deaf. उसको सलाह दी गई कि वो hearing aids इक्विपमेंट यूज करे सुनने वाले, और एक स्पेशल स्कूल होता है डेफ बच्चों का, उसमें उसको एडमिटेड किया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सीज एवलिन। और एवलिन कहती है ये सुनकर बिल्कुल एक आई बिकम डिस्परेट एट द वेरी मोमेंट। लेकिन क्या कहते हैं आगे, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। एक मिनट के लिए उसको ऐसा लगा कि सब कुछ ब्लैक हो गया, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, हौसला नहीं छोड़ा। शी डिडंट लूज हर क्रेज। She was determined to lead a normal life and pursued her interest in music. अपनी नॉर्मल लाइफ को उसने की तरफ बढ़ती गई और अपना जो इंटरेस्ट था म्यूजिक में वो परस्यूड कंटिन्यू रखा। One day she noticed the girls playing xylophone and decided that she wanted to play it too. उसने एक लड़की को xylophone प्ले करते हुए देखा और डिसाइड किया कि वो भी इसको प्ले करेगी। Most of the teachers discouraged her, but परक्यूशनिस्ट रॉन फोक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने उसको डिस्करेज किया, लेकिन उनमें से एक टीचर था रॉन फोक्स, परक्यूशनिस्ट था, तबला वादक था। उन्होंने उसकी जो पोटेंशियल थी, उसकी कैपेसिटी थी, उसको आइडेंटिफाइड किया, स्पॉट किया, स्पॉटेड, आइडेंटिफाइड। He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, she says. Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. उसकी टीचर ने रॉन स्पॉप ने कहा कि इसको सुनो नहीं, इसको सेंस करो। और उसने 2 ड्रम्स को प्ले किया, उसको टोन दी, और उसने जो बड़े वाला ड्रम था, बिगर ड्रम को वेस्ट के अप से सेंस किया, और जो लोअर टोन था उसको वेस्ट डाउन से सेंस किया। ये एवलिन ग्लेनी ऐसा कहती है। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फिर उसने उस एक्सरसाइज को रिपीट किया। रॉन फोर्ब्स ने, जो उसका परक्यूशनिस्ट था, उसका टीचर था। And soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और अब उसने जब उसने एक्सरसाइज रिपीट की, एक्सरसाइज को रिवाइज किया, तो उसने एवलिन ग्लेनी ने ये महसूस किया कि वो सर्टेन नोट्स को फील कर रही है अपनी बॉडी में। I had learned to open my mind and body to the sound and vibration. अब उसने कहा कि मैंने अपने I have learned, मैंने सीख लिया, to open my mind and body, मैंने अपने दिमाग को और अपने शरीर को to the sound and vibration, साउंड के लिए वाइब्रेशन का अपने दिमाग और बॉडी को उसने ओपन कर दिया था। मीन्स वो सेंस कर रहे थे प्रॉपरली। द रेस्ट वॉज सीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और कहता है बाकी का काम जो उसने सीख लिया था, दिमाग की जो सेंसेस को खोलना, वाइब्रेशन को फील करना, वो सीख लिया था। और कहते हैं कि बाकी का जो काम है वो रहता है हार्ड वर्क करने का। She never looked back from that point onward. She turned to United Kingdom with a youth orchestra. She never looked back. अब उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, इतनी उसने हार्ड वर्क की
She toured और यूनाइटेड किंगडम के लिए टूर किया विद यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16, जब वो 16 वर्ष की थी तो उसने यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के लिए, ब्रिटेन के लिए टूर में उसने पार्टिसिपेट किया ऑर्केस्ट्रा की टीम के साथ। 16 इयर्स ओल्ड थी उस टाइम वो। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और म्यूजिक को अपने जीवन का उसने उद्देश्य बना लिया। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसने पार्टिसिपेट किया, ऑडिशन दिया, और उसके इतिहास में रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक बड़ी फेमस है। उसकी हिस्ट्री में इतना जो स्कोर आज तक किसी ने नहीं किया था जो एवलिन ग्लेनी ने उस समय किया। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। अब ऑर्केस्ट्रा की तरफ से सोलो परफॉर्मेंस जो सिंगल जो प्ले करता है उसमें उसने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, 3 वर्ष के कोर्स में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। 3 वर्ष का जो कोर्स होता है उसमें उसने बहुत जो बड़े बड़े अवार्ड थे सारे उन्होंने अचीव कर लिए थे एवलिन ग्लेनी ने। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट्स ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इन सब के लिए जो एवलिन है वो कोई अपनी जो बोस्ट नहीं करते, अपने आप को ज़्यादा प्रेज नहीं करती, एडमायर नहीं करती, इसके लिए कोई कहती कि कोई शाइन नहीं दिखाती। इफ़ यू वर्क हार्ड, वो कहती है, शी सेज इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप मेहनत करते हैं और आपको पता आप कहाँ जा रहे हैं, आपको कहाँ जाना था, वेयर यू हैव टू गो यू विल गेट देयर, आप वहाँ पहुँच जाते हैं। आपने अपना ऑब्जेक्ट सेट किया, हार्ड वर्क किया, देन यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल, शी सेज सो। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist over the mastery of some 1000 instrument and hectic international schedule। और उसने लगभग 1000 से ज़्यादा 1000 से ज़्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख लिया था, और उसका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था कंसर्ट देने का वो इतना हेक्टिक था कि उसके पास सी हैड नो टाइम एट ऑल for the other people, for the other. So student, this is the first part of the Sound of Music, Evelyn Glennie, and in the second part, the rest of the lesson from the same part, Evelyn Glennie, we will read in the same part. Till then, have a great day.